May I please, your lordship? Item number 38.41. Hmm? 0.41, my lord, WP number 21016, my lord, 1016 of 2021. 20, 21, my lord. 21. 20. My lord, this is a petition, my lord. There's only one petition you are arguing. Yes, Yes. only this petition. Now, my lord, by way of this petition, my lord, I have assailed, my lord, two orders, my lord. My lord, the annexure. What are you had participated in some selection? No, my lord, I'm before the, my lord, the the notification, my lord, 2nd July 2019, my lord, whereby the reservation, 10% reservation was provided to the economic weaker section of society, my lord, with a view to amendment, my lord, brought in the constitution, 103rd amendment, my So lord. you are only against 10%. I am against the, my lord, entire reservation, my lord, which exceeds the 50% limit, my lord, with a view to Indra Sohane as well as the Jayashri, my lord. Hmm. So, my lord, my respectful submission is, my lord, No, that 10% is under challenge in the Supreme Court. And there are some interim orders also. my lord. So we will not be touching that issue. So, my lord, but my core issue is, my lord, anything. So far as 14 to 27 is concerned, that we are deciding. Yes. So, my lord, my arguments are limited to this aspect, my lord. Any arrangement of reservation, my lord, which is made by the state government, my lord, that has to be within the four corners of So the, that my lord, argument parameters. we have heard at length. That is my submission also. That we have heard. It covers, my lord. It covers, in fact, the reservation which is granted to the EWS also, my lord, which reaches the entire reservation up to 73. No, that is pending. My lord. Whether that 10% will come within the 50% or it can be beyond, that Supreme Court has to decide. But in that case, my lord, any order, my lord, on this particular aspect, my lord, will definitely, my lord, hit by the any order passed by the Honorable Supreme Court. My lord. Yes, yes. So my humble submission is, my lord, in this particular petition is, my lord, any arrangement of reservation, my lord, which reaches beyond the 50% of reservation, my lord, is the absolute violation of, my lord, the law laid down by the Honorable Supreme Court in Indra Sahane, my lord, as well as in the recent judgment of, my lord, this Jayashri versus Chief Minister of Maharashtra, my lord. All right. Your name? Hitendra Kumar Golhani. Hitendra Kumar Golhani. Hitendra Kumar. All right. That is my submission. One thing that, my lord, I want to bring on my lord's kind attention. Hitendra Kumar? Golhani. Hmm? Golhani. How do you spell it? Golhani. All right. My name is there in Wakalat. Yes. Yes, ma'am. So, my lord, I just want all that argument we have heard. Yes, my lord. My lords have given ample time to hear on that, my lord, and much water has been flown on that, my lord. I do understand. One aspect that, my lord, that the draft committee of the Constitution, my lord, Dr. Ambedkar has, my lord, has pointed out while this discussion was being done, my lord, with respect to allotment of reservation. When we say straight away, my lord, that the equality has to be there for equal opportunities for the public institutions and public undertakings, my lord, does really that mean that the equal opportunities for those who are basically the deserved class? So, my lord, this aspect, this I want to read, my lord, that is what my submission is, because the rest of the things has already been argued, my lord. So, page number 57, my lord, I have filed that particular document, my lord. And the relevant is from para 2, my lord, page number 57. 21016. ये क्या है? Page number? Page number 57, my lord. 7. Yes. This document is, my lord, the is for Constituent Assembly or my lord, which was discussed on 30th of November 1948. This is regarding which article? It's regarding earlier it was 10(3) original in the original constitution draft, but now it is 14, my lord.
This is part of which book? 16. My lord, Constituent Assembly of India. man, Hmm. 16. Now it's 16:4, my lord. Hmm. So it is basically, my lord, the purpose why I'm my lord, Hmm. the reason why a reasonable distribution or reasonable reservation is required. That is what is said on this, my lord. Giving straight away, my lord, no reservation is also against the spirit of constitution, my lord. And giving unreasonable reservation is also against the basic Yes, structure of the yes. constitution. This is what is, my lord, given. Yes. All right. So that is what my submission is. All right. My lord, in my petition, my lord, the reservation against, not only against the OBC but also ST, SC, my lord, that is also under challenge in this petition. So entire reservation, my lord, Yes, that yes. is that. I'm grateful. Yes. So साफिद को बुला। आपके कौन कौन से WP हैं? मैंने आज लगा है 31.33 WP नंबर 13298/2021। कितने हैं आपके? 19 है, 19 है मेरा टोटल। 19 31.19। जी नहीं, टोटल 19 है। 31.33, 31.30, 31.31, एक मिनट। शुरू कहाँ से हो रहा है? 31.1, 1। 31.1 और 31.3, हम्म 31.7, यस। सॉरी 31.6 6। जी। 7 पर 7 के बाद वापस आ गए आप? यस मेलोड, ये क्रम से नहीं लिखा है। 6। 6 मैडम। हाँ। 31.31, 31.31 31.30 मैडम ऑल्सो 30 भी है? जी मैडम। 31.33, 31.26, 31.48, 31.18, 31.37, 31.18। यस मैडम 31.18। हाँ। उसके बाद 31.34, 34 यस। यस 31.39, यस। 31.38, 31.35, यस। 31.5 also my lord, 31.5 yes my lord, यस। और 31.2, 31.40 my lord also, 31.2 भी है? yes my lord, 31.4 2 और 31.40, yes my lord 31.40 40 जी। 4 नहीं? 4 my lord नहीं, नहीं my lord, So, इसमें कुछ में हम इंटरवेनर की ओर से हैं। नहीं जिसमें petitioner हैं आप। पिटिशन में my lord 40 दैट इज ऑल। चलिए ठीक। मतलब वो कॉल लिस्ट में है नाम। नहीं ये सब petitioner जिसमें है वो बताइए। इंटरवीनर की हमको जरूरत नहीं है।
कुछ केसों में जैसे भाई आप पिटिशनर की तरफ खड़े हैं तो आप पिटिशनर का बताइए। मतलब यूथ फॉर इक्वलिटी 31.40 में हम इंटरवेनर की ओर से हैं, नहीं, इसलिए हम इंटरवीनर की जरूरत नहीं है हमको। हाँ तो ये 31.2 में भी हम इंटरवेनर की ओर से, तो ये इसको हटा देते। इसके बाद आप अपने एसोसिएट से कहिए कि जो जिसमें आप पिटिशनर के लिए हैं उसकी एक लिस्ट हमको दे। जी हाँ यस। ठीक। माय लॉर्ड, हम्म हम्म ऐसे चलिए। आप क्या लिखते हैं पूरा नाम? उदय कुमार उदय कुमार। जी। हम उसे साहू हैं, लेकिन साहू लिखते नहीं, मेरे नाम में उदय कुमार श्री ही उदय कुमार, ऑलराइट। यस, जैसे ये रखें। यस। यस। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैंने अपने आर्गुमेंट के शुरू में यस। मतलब मैंने अपने आर्गुमेंट के शुरू में मैंने इस बात को उठाया था कि कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ इस मैटर में जो जनरल इम्पोर्टेंस के हैं वो इस केस में इन्वॉल्व है, और योर लॉर्डशिप की जजमेंट में वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया जाना जरूरी है मेरे समझ से। क्वेश्चन ऑफ लॉ बताइए। जी, क्या 103वां संविधान संशोधन द्वारा संसद में इंदिरा साहनी तथा अन्य केस में 50% की सीमा बाबत दिए गए निर्णयों को ओवररूल कर दिया है, और क्या इस कारण भी इंदिरा साहनी का केस बंधनकारी नहीं है? Whether by the 103rd amendment पार्लियामेंट हैज ओवररूल्ड द जजमेंट। मैं लोग ये दे ही देता हूँ, मैं मेरे पास है, एक्स्ट्रा कॉपी है, मैंने जो बनाया है। इंदिरा साहनी ने 50% सीलिंग को ओवरलुक किया है कि नहीं है? दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन। यस माय लॉर्ड, क्या 103वां संविधान संशोधन द्वारा 100 103rd 100 उसमें क्या हुआ था? उसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने दिया, पार्लियामेंट ने दिया। उसके बाद ये संविधान संशोधन 10% रिजर्वेशन की बात नहीं हो रही अभी। माय लॉर्ड, मैं ये कह रहा हूँ सीलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ है कि यदि नहीं, हम लोग 103वां सिर्फ 14 to 27 वाले इशू पे हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ तो वो जो लिमिट थी 50% की लिमिट वो पार कर गया। तो क्या नहीं, वो 103rd पार किया कि नहीं वो इशू अभी सुप्रीम कोर्ट वो में पेंडिंग है। माय लॉर्ड वही वो सीलिंग पेंडिंग का है, वो मैटर हम पेंडिंग उस पर नहीं कुछ कह सकते। माय लॉर्ड काइंडली सी ए। आप सिर्फ 14 to 27 की बात वही करिए। बात इसमें इन्वॉल्व है। ये इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बेंच ने सीलिंग के मामले को सुनने के लिए माय लॉर्ड इसमें ऑनरेबल जस्टिस SR बोबड़े, सॉरी अभी है नहीं, इसमें ऑनरेबल जस्टिस लास्ट में मैलॉर्ड देखेंगे, इसमें ये तीन न्यायाधीशों का ये है। इसमें ऑनरेबल CJI उस समय के SA बोबड़े, R सुभाष रेड्डी और BR गवई साहब इसमें थे। इन तीन न्यायाधीशों की बेंच ने इस मामले को 5 जजेस की बेंच में रेफर किया है, यस। और इसी बिंदु पर रेफर किया है जो बिंदु इस केस में इन्वॉल्व है। सीलिंग 50% सीलिंग के मामले में इन्होंने रेफर किया है। काइंडली सी पैरा 18।
लास्ट पैरा है मेलोड इसका. Yes. For the aforesaid reason, we allow the transfer petition and refer this batch of cases, including the cases covered by transfer application, to a bench of 5 judges, ready to place the matter before Honorable Chief Justice for obtaining appropriate order in this regard. Yes. ये इन्होंने सभी को रेफर कर दिया 5 जजों की बेंच में. और मामला क्या था, इसमें क्यों रेफर किया, उसका मामला सीलिंग का मामला था. और ये माय लॉर्ड काइंडली सी पैरा 15 माय लॉर्ड, काइंडली सी पैरा 15. Para 15. 5 अगस्त 2020 का 10% EWS का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चैलेंज कर, उसको 5 जज बेंच को रेफर कर दिया. ये रेफरल ऑर्डर है. जी इसमें निकाला. टू रेफर द मैटर काइंडली सी पैरा 15. मैं समझ गए हम, बट ये क्यों आप दिखा रहे हैं? ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जिसमें ऐसा कोई प्रश्न इन्वॉल्व हो, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित मामले हो, तो उसको सुनने का अधिकार सिर्फ 5 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को है, सुप्रीम कोर्ट के. इस न्यायालय को नहीं है. तो आप वहाँ इसमें इन्वॉल्व मामला ये है, तो आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई करना पड़ेगा, चूंकि ऑपोजिट पार्टी ने ये फाइल किया है. तो और उस केस में, इस केस को इन्होंने अगर आप इससे चाहते रेफर हैं किया कि है. इसमें 2 बातें आई है. इस केस को अगर रेफर आप- किया गया है. सुन तो लीजिए जी अगर आप चाहते हैं कि ये केसेस यहाँ के बजाय वहाँ सुनवाई हो, जी तो आपको वहाँ पर पिटिशन लगानी पड़ेगी ट्रांसफर के लिए. जी मैं लेकिन उस बात को देख तो लिया जाए, हम उसी पर आ रहे हैं. देख तो लिया जाए. और भी बिंदु हैं इस मामले. इस केस को रेफर किया गया 5 जजों के बेंच में. इसमें 2 कारण थे. पहला कि इतिहास में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशन दिया गया. ये संविधान में इससे पहले कभी नहीं आया था. इकोनॉमिकली आधार पर रिजर्वेशन कभी नहीं दिया गया. एक तो ये मैटर था. दूसरा मैटर ये था कि 50% की जो कैप इंदिरा साहनी केस या जितने भी केस हमारे अपोजिट पार्टी के द्वारा रेफर किए गए, उन सभी केसों में जो 50% की कैप को लगाया गया था, ये कैप भी 10% रिजर्वेशन को लागू करने के बाद कैप ऊपर हो जाता है. ये 60% चला जाता है, या 60 के विदिन 60 और 60 चला जाता है. नहीं तो वो क्या- चला जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी डिसाइड होना है. तो वो इसमें भी है कि वो डिसाइड होना है. क्या हम 50% रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं, वो सीलिंग जो दिया गया है इंदिरा साहनी केस में, वो सही है या गलत है, इस बिंदु पर विचार करने के लिए ये रेफर किया गया है. सिर्फ एक बिंदु नहीं है. 10% रिजर्वेशन का सिर्फ एक बिंदु नहीं है, दूसरा बिंदु भी है. ये सीलिंग को पार जो किया है, तो क्या संविधान की ये पार्लियामेंट की मंशा क्या है, इस बात पर भी विचार के लिए इसको रेफर किया गया है. अदरवाइज 3 जजों की जो बेंच थी वो पर्याप्त थे इस बिंदु पर बात करने के लिए. तो उन्होंने आर्टिकल 145 को उन्होंने साइट किया है. आर्टिकल 145 काइंडली सी आर्टिकल 145. को रूल्स ऑफ कोर्ट etc. Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice No, and Mr. procedures of Kumar, the but court. why are you citing this article? It's not relevant. मैं This issue is yet to be decided. हम उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना आपको उस पे बहस तो करनी जब चाहिए. माय लॉर्ड ये इशू सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच के सामने, संविधान पीठ के सामने विचार के लिए है, तो प्रश्न उठता है क्या सेम इश्यूज को इस बेंच के द्वारा या इस हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है? No, it is not. क्वेश्चन ऑफ लॉ ये भी है मेरा. It is not the same issue. जी It is not the same issue. माय लॉर्ड, लेकिन इसको आप हमारे विपक्ष में डिसाइड कर दें, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऑफ लॉ माय लॉर्ड एक इस पे भी. हाँ, एक क्वेश्चन बताइए ना. एक तो बताया आपने. एक मैंने बताया. तो यही जो पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ मैंने जो योर लॉर्डशिप को सजेस्ट किया है कि वेदर बाय द 103rd amendment Parliament has overruled the judgment of the Indira Sahni etc. case in which 50% ceiling in the reservation had been inserted, whether due to this reason also Indira Sahni case etc. case regarding ceiling of 50% reservation and representation, ceiling of the 50% reservation representation and reservation is not keep binding effect.
जब पार्लियामेंट ने हाँ over ठीक है, we've noted down the second, जी। whether 103rd constitution amendment yes leads to relaxation of the cap of 50% or not. yes All right, next third question. पार्लियामेंट ने ओवर रूल कर दिया है नहीं इस बात पर? All right, क्या third. पार्लियामेंट ने ओवर रूल कर दिया तो क्या सुप्रीम ये जो है सो हम न्यायपालिका के किसी जजमेंट को क्या पार्लियामेंट ओवर रूल कर सकती है कि नहीं, इस बात पर चर्चा की। ठीक है मैडम। अब नेक्स्ट है, whether over representation of any class is not create hurdle to grant adequate representation to the other class under article 16(4) of our constitution। Hmm. यानी जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन यानी कि आबादी है। अभी बात चल रही थी हमारे कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्या है और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन हमारे किसी अपोजिट पार्टी, किसी अधिवक्ताओं ने या किसी पार्टी, किसी एडवोकेट पार्टी ने इस बात को राइज नहीं किया कि क्या ओवर रिप्रेजेंटेशन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। विद इन 50% की बात तो कही, प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कही। भारत में जो आबादी है विभिन्न, और मध्य प्रदेश में जब ये केस मध्य प्रदेश का चल रहा है तो मध्य प्रदेश के इस केस में 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए, 20% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए, जबकि उनकी आबादी 21.1% है। ओबीसी की आबादी 51 के आसपास है, 50% के ऊपर है, और उनका रिजर्वेशन मात्र 14% है। जो ये डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया है, इस डाटा को उन्होंने चैलेंज किया है। हमारे अपोजिट पार्टी ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का उन्होंने, एक ऑर्डर का, एक जजमेंट का उन्होंने जिक्र किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ये जो डाटा में अगर मान लीजिए 80% आबादी है ओबीसी की, तो उनको 80% रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। ऐसा जनसंख्या जो है सो आधार नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। ये प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन संविधान में नहीं कहा गया है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कहा गया। लेकिन उन्होंने ओवर रिप्रेजेंटेशन की कहीं कोई चर्चा नहीं की। क्या संविधान में यह कहा गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति का, जिस किसी भी वर्ग का, नहीं, ओवर से आपका क्या मतलब? ओवर से मतलब ये है एडिक्वेट, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ओवर रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और लेस रिप्रेजेंटेशन, जीरो रिप्रेजेंट, जब रिप्रेजेंटेशन की चर्चा आती है। ओवर रिप्रेजेंटेशन का कोई एग्जांपल बताइए। मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल ये है कि मध्य प्रदेश में जो डाटा अपोजिट पार्टी सरकार ने जो पेश किया है, उसके तहत 14% रिजर्वेशन सरकार ने दिया, लेकिन अभी भी जो थर्ड क्लास के जो कर्मचारी हैं उसमें 13% रिप्रेजेंटेशन ही मध्य प्रदेश में ओबीसी का है। और आज़ादी के बाद से आज तक की बात है, अगर फर्स्ट क्लास की बात कहें तो उन्होंने डाटा पेश नहीं किया है। फर्स्ट क्लास में 0% रिजर्वेशन है। बल्लभ भवन में, बल्लभ भवन भोपाल में अगर देखा जाए, उसमें जब इन्होंने बात की, अभी मैंने कुछ दिन पहले बात किया था, ये जो हमारे ये हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, उनसे जब हमने बात की तो कहा फर्स्ट क्लास में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन हमने कहा आपने डाटा क्यों नहीं दिया? बोला ये बड़ा टफ काम है, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इस मैटर में अधिकारियों से भी बात की। तो आपका क्या डेटा बताइए ना, डेटा परसेंटेज बताइए। अगर इनका डाटा मान भी लिया जाए गवर्नमेंट का, नहीं, आपका डेटा बताइए। हमारा डेटा, हम इस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम प्राइवेट पार्टी हैं, हम इस डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। ये काम सरकार के इंटरनल मामलों का है। लेकिन हम अगर विश्वास व्यक्त करें, जो सरकार ने डाटा प्रस्तुत किया है उसी पर अगर तो विश्वास आपका करें। कहना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन इन दी गवर्नमेंट सर्विस है Yes. या पब्लिक सर्विस है, यस, ये कितना है ओबीसी का? 13 दशमलव कुछ परसेंट समथिंग है। 14% से कम है और 13% से ज़्यादा है। ये सिर्फ ये थर्ड, तृतीय वर्ग कर्मचारियों में, फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों में ये है। ज्यादा है। हाँ, फोर्थ कर्मचारी इसमें 13 पॉइंट, क्लास 2 क्लास 1 में कम यस, है। क्लास 1 में बहुत कम है। अच्छा। वो तो अभी एक हम बात कर रहे थे, मेंबर हैं जालम सिंह साहब, उनसे बात कर रहे थे, बोला उन्होंने 7% है। और अविश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, हमको जो जानकारी है उसके मुताबिक, ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है मध्य प्रदेश में वो 4% मात्र है। तो ये 4%, 7%, लेकिन हम कह रहे डाटा दीजिए, तो जो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं कि अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, एक जाति विशेष के अधिकारी हैं, और वो सहयोग नहीं कर रहे, और नहीं करने का वो डाटा अभी तक नहीं दे पा रहे। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगने के बाद उन लोगों ने कुछ डाटा उपलब्ध कराया और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। वो डाटा भी प्रॉपर नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के हार गए। कौन सा ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी आया है, मराठा संबंधित
पंचायत चुनाव में अभी भी जो हुआ है, अभी जो फैसला हुआ है जिसमें खानविलकर साहब थे उसमें, तो उसमें डाटा नहीं दिया। और उसमें हुआ ये कि पंचायत राज अधिनियम में जो चुनाव अभी पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव हुए हैं उसमें ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया गया एक्ट में, और अनरिजर्व जो कैटेगरी है उनको मात्र 25% रखा गया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के 25% रिजर्वेशन को धाराशाही करके और उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। जिस जिला में ओबीसी और एससी एसटी की आबादी 50% आ गई, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म हो गया। पार्लियामेंट ने पास किया, कानून पास किया विधानसभा ने, और उसको ऑनरेबल कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने उसको धाराशाही कर दिया और ओवररूल कर दिया। पार्लियामेंट कानून की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते नहीं, हम योर लॉर्डशिप के सामने हम आर्गुमेंट करने आए हैं, सुप्रीम एक कोर्ट एक का- बात हम रख रहे हैं, एक एक बात योर लॉर्डशिप के सामने हम रख कोर्ट का जजमेंट आप पे बाइंडिंग है कि नहीं है? माय लॉर्ड वो बाइंडिंग है कि नहीं ये बात भी हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशगण मिल करके और ये फैसला कर दें, वो तो तीन जज हैं, अगर सभी जज मिल करके फैसला कर दें कि कल से भारत का संविधान लागू नहीं होगा, क्योंकि मनुस्मृति का जो हमारा पुराना संविधान है उसको अल्ट्रावायलेंस करता है। तो मनुस्मृति का हमारा कानून जो है वो देश में सदियों से है, सैकड़ों वर्षों से है, और जो हमारा संविधान है वो मनुस्मृति के संविधान को वायलेट करता है। 4:30 हो गए। तो मनुस्मृति के संविधान को मंडे को लेते हैं। जी ठीक है। टाइम ऑर्डर कर दो।